basically people often think that memory is a gift. Like people put that like it's a, it's a gifted kid. Yeah, basically, memory is not gifted. Basically, it is a skill. Okay, how you develop it. So many parents say this, like some children have good memory, some don't have. So why this happens is because आपने इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है एंड दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट. अगर हम नॉर्मली भी सोचेंगे नेशनल लेवल पे तो ऑलरेडी अचीवमेंट है, बट इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना. अभी जब मैं सिलेक्ट हुआ था इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए, तो फिर वही सबसे पहला लाइफ का एक्सपीरियंस, तो डर और नर्वसनेस, बहुत बहुत डर और नर्वसनेस था. और मुझे सिलेक्ट करने से सिर्फ 2 महीने पहले बताया गया था. फिर मैंने तब मुझे लगा कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा. फिर अगेन माई टीचर गाइडेड मी, कोई नहीं, यू गिव योर बेस्ट. तू दूसरा मत देख, बस खुद का देख, तू कैसे अचीव करेगा, खुद को लाइक इम्प्रूव कर. टेक्नोलॉजी ने हमें स्मार्ट बनाया है या सिंपली ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया है? कौन कैसे यूज़ कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन दैट. मैं बताऊँ, इंडिया के बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. मैंने जब चालू किया था ना, तो एक हमने छोटे बच्चे को ट्रेन किया था. उसको मैं सही बताऊँ, उसको बोलने भी नहीं आता था. लाइक 2 years का था वो. Hello people, welcome back to my channel. Today's guest is someone who is a memory athlete, a educator and a founder. From representing India in international stages to now training thousands of students in developing the cognitive skills. Trust me, this conversation is going to be very impactful and helpful as well. Not just for the parents, children's, for aspirants, for entrepreneurs and for everyone who want to use best of their brains. So let's get started. Please welcome Mr. Raj Sutar for this conversation. Thank you so much for coming, Mr. Raj, for this conversation. It's going to be a very useful conversation for all of us. Yeah, thanks for calling me. My question is, I want to start with what exactly is memory athlete? I have heard it for the first time, and how actually human brain works in it. So what actually is a memory athlete? So basically, see, we know athletes like physical athlete, they play some physical games differently. So memory athlete is someone who plays memory games. Okay, so there are different memory games. There he practices with his brain with memory games. So this is what memory athlete is, and what is considered with human brain basically. See, like memory is something, where we have to memorize, store and recall. So all this practice, is included with human brain. So like this is what it is. Right, agree. And like, basically people often think that memory is a gift. Like people put that like it's a, it's a gifted kid. If someone is very good in like studies or basically in any brain activities, right? So if someone is good in sports and someone is good in studies, so basically people think that it's often gifted. What do you think about that? Do you think it's a gifted or it's a skill that anyone can actually build over the time? Yeah, basically, memory is not gifted. Basically, it is a skill. Okay, how you develop it. So many parents say this, like some children have good memory, some don't have. So why this happens is because how their childhood was, like how they are, preparing their child. If they're telling no, you can't memorize it, study hard, study hard. So like that, the environment is there, like that their memory grows. But it is a skill. The more you practice memory, the more good it goes. The more good it grows. Yeah. That's actually the point. Before, like if you are going to doom scroll more, you are going to be in that zone. But if Yeah. you are going to read more, you will not even know a lot of things about that Yeah, at the same time. 100%. Right, How much you're training your mind, that matters. right. And Yeah. in the which way like you are doing it, right? Yeah. Exactly. uh Firstly, like we have all known, it's like you have trained now almost 4,000 plus students in Yeah. cognitive skills and development. How was your journey started at in this thing? So basically, how I started, like I was first a student, in this Rubik's Cube thing. And like when I started, I told to my mother, I don't want to join like this classes. I'm totally not interested. I was very good at physical sports also, I tell you. So I was going to cricket classes and everything. So started, like my mother joined me this classes. There was one academy in Varje, so I joined it. And there I got my, like, first achievement. Like in that time I was in 9th standard. So and I can say it was a turning point of my life. I felt something I can do in this field. So after that, I started practicing memory games, different subjects, and later there are championships. I prepared for championship. I played championships, and after that,
after I came to India, after doing some international events, then here COVID came. So after COVID, I was not having any work. So Right. I just started a small, like classes at my home only. So there were 2, 3 children coming, and I was just training them basically cube and everything. And that time the parents said that the child is, not using more phone now. He's just practicing the cube. He has focused. So something I felt that yeah, I can, do more good in Right. this. So later I started RACI. So it's all about memory games, abacus, mental maths, and all brain development. So slowly by grace, everything growed, and like we started one branch in Varjee, and differently people connected, and I got some international connections also. And because people were seeing the results, and children were improving, so it grew like that. And yeah, it is really helping the children to do good in memory, to focus, to improve their focus. It is also helping parents. It is showing results in academics. Right. So this is how I started, and like it went good. So I'm hoping to reach more people, reach more kids, to teach them and grow in this field. फर्स्टली लाइक जब आपने स्टार्ट किया था आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ के लिए लाइक यू आर गोइंग टू गो इन दिस फुली प्रोफेशन बिकॉज मोस्टली पेरेंट्स वुड हैव एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ चाइल्ड बिकमिंग इंजीनियर डॉक्टर और समथिंग कुड लाइक बी सीए हाँ और हाँ एनीथिंग हाँ लाइक दैट नहीं, बेसिकली ऐसे कोई मतलब पेरेंट ने कभी ये नहीं किया. वॉट एवर आई यूज टू डू, दे यूज टू सपोर्ट 100%. सो आई एम लकी दैट, दैट्स लवली क्योंकि मतलब मेरे मम्मा का ये था कि आप क्रिकेटर बनो. तो मैं क्रिकेट क्लासेस को जाता था, फिर लाइक उन्होंने ज्वाइन भी किया था, और फिर उन्होंने मेरे लिए विराट कोहली जी की बुक लाई थी, ये पढ़ो आप, ये करो. बट देर आई रियलाइज्ड कि मेरे को उतना नहीं आ रहा है वो, मतलब मैं मेरा 100% तो देता था, बट स्टिल कि एक बार हमारी मतलब एक मुंबई में चैम्पियनशिप थी ये क्रिकेट की. सो 4 डेज़ का मैच था, और मैं सिर्फ बॉलिंग में अच्छा था, और मैंने क्रिकेट की जर्नी में कभी सिक्स नहीं मारा था मतलब वो बॉल पे. सो तब गया था मुंबई में, मुझे सिलेक्ट किया था खेलने के लिए, तो हमने वहाँ पे खेला. तब हमने चारों दिन चारों मैच हार गए. सो ऐसे भी हुआ था, तब पहली बार ऐसे फैमिली को छोड़ के बाहर गया था, तो वैसे भी फेल्ट हुआ, थोड़ा सा रोया भी थे, और ये सब हुआ था. फिर आने के बाद ये फ़ील हुआ कि नहीं यार, मुझे नहीं लगता मैं इसमें जा सकता हूँ आगे. पहली बार मुझे ये फ़ील हुआ, तभी भी मैंने घर पे बोला कि नहीं, मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा, आप मुझे विकेट कीपिंग का किट ला के दो. मैंने तब देखे IPL वगैरह में धोनी जी के वगैरह मैचेस वगैरह. फिर घर वालों ने फिर से विकेट कीपिंग का किट ले लिया, फिर से वो भी नहीं जम रहा था, तो फिर मैंने वो एज अ हॉबी कंटिन्यू किया. एंड देन लेटर एज आई टोल्ड कि हमारा फिर जस्ट एक एडवर्टाइज आया था कि ज्वाइन रूबिक्स क्यूबिंग क्लासेस, और फिर मैंने वो स्टार्ट किया. और फिर मम्मा का बस यही था, तू कर, बस अच्छी तरह से कर, कोई तो चीज़ एक पूरे फोकस्ड वे में कर. सो दे ऑलवेज सपोर्टेड मी, लाइक जो मैंने चीज़ें की है, एंड या दैट इज़ द थिंग. सो दे सपोर्ट नाउ ऑल्सो. वॉट एवर आई ऑलवेज आस्क कि अभी भी कोई डिसीजन हो तो मैं उनको पूछता हूँ कि ये करूँ क्या. सो दे यू स्टडी इट, इफ इट इज़ गुड यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट. सो दे सपोर्ट फॉर दैट थिंग. दैट इज़ like a blessing for me, I can say you. yeah it's a blessing, it's a blessing. Yeah. Also you remember your first teacher जिन्होंने आपको actually solve करना सिखाया था क्यों? Yeah, I do remember, and today whatever I am because of him only, to be honest. You are in contact Because with him? yeah, I do, I'm in contact with him. I like whenever I need, I speak with him. He's not only my Rubik's Cube teacher, he is my, I can say, life coach. So whenever I get any doubt, I just like speak with him, I talk with him, and I get it solved. So like when it started na with that teacher, like I was scared that how should I do that, मेरे को नहीं जमेगा ये क्यों, कैसे करूँ मैं. तो इंटर क्लास चैम्पियनशिप थी, इंटर क्लास मतलब क्लास में लिया था, तो तभी मेरे को पहला अचीवमेंट मिला, जैसे मैंने आपको बात कहा था. तो उसके बाद जो मुझे ऐसा लगा कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, उसके बाद जब भी उन्होंने बताया, उनका नाम अक्षय वर्मा है. सो जब भी उन्होंने मुझे गाइड किया, कि तब से लेके अभी तक, लाइक अगर उन्होंने बोला ना कि राज तू अभी कॉफ़ी छोड़ दे, तो आई एम रेडी टू लीव दैट ऑल्सो. लाइक मैं उनको इतना मानता हूँ, एंड लाइक बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर टुडे, एंड ही गिव्स रियली गुड गाइडेंस. लाइक एक टीचर जैसे मेरे मम्मा पापा के जैसे ही उन्होंने मुझे गाइड किया है, और हमेशा बताया है कि तू ऐसे कर सकता है. सो ही इज़ लाइक वन ऑफ माई बेस्ट टीचर. कोई तो चाहिए लाइफ में या इन द 100%. रोल ऑफ समवन जो आप टू ग्रो यही है कि जैसे हमें किसी भी फील्ड में ग्रो होना है, एक टीचर होना है, गुरु होना है, इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट. क्योंकि उनके गाइडेंस के, उनके पाथ पे हम जब चलेंगे,
तो सिंपल रहता है चीज़ें अचीव करने में। राइट। या तो एज अ नॉर्मल ह्यूमन, एज अ नॉर्मल पर्सन हमें डिफिकल्ट रहता है कि क्या करो, कितने ओवर थिंक करते हैं लोग कि क्या करना है, कुछ क्लियरिटी नहीं रहता। सो एक टीचर का गाइडेंस हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लाइफ में ग्रो करने के लिए। राइट, अग्री। Yeah. आपने इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया है एंड दैट इज़ अ बिग अचीवमेंट। अगर हम नॉर्मली भी सोचेंगे नेशनल लेवल पे तो ऑलरेडी अचीवमेंट है, बट इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करना, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था और उस चीज़ से आपने क्या क्या सीखा? अभी जब मैं सिलेक्ट हुआ था इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के लिए, तो फिर वही सबसे पहला लाइफ का एक्सपीरियंस तो डर और नर्वसनेस, बहुत बहुत डर और नर्वसनेस था। और मुझे सिलेक्ट करने से सिर्फ 2 महीने पहले बताया गया था। तो दिसंबर में चैम्पियनशिप था, तो जैसे मुझे बताया कि राज टर्की में एक चैम्पियनशिप हो रहा है, तो आप वहाँ के लिए सिलेक्टेड हो। तो वो भी कैसे मुझे पता चला कि इधर गुजरात में एक चैम्पियनशिप था इसका मेमोरी का। तो बाइनरी डिजिट करके एक सब्जेक्ट था, उसमें मुझे अच्छा स्कोर आया। लाइक इन 5 मिनट्स मैंने 270 नंबर्स लर्न किए थे सीक्वेंस में। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि यू आर सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल चैम्पियनशिप इधर दिसंबर में, वी हैव टू गो। फिर मैंने तब मुझे लगा कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा। फिर अगेन माई टीचर गाइडेड मी, कोई नहीं, यू गिव योर बेस्ट, तू दूसरा मत देख, बस खुद का देख, तू कैसे अचीव करेगा, खुद को लाइक इम्प्रूव कर। और फिर उसके बाद मैंने तभी भी मैंने देखा कि कौन कौन आने वाला है, कौन से कंट्रीज़ आने वाले हैं उसमें। तो उसमें टर्की की एक लड़की थी, उसका 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, और सारे मेमोरी एथलीट जो थे ना, अभी भी आप देख सकते हो 28 ईयर्स, 30 ईयर्स, 45 ईयर्स के भी थे। और मैं तब था 14-15 साल का। तो मुझे ये था कि इनको इतना एक्सपीरियंस, तो मैं इनसे कैसे कॉम्पीट करूँ। डर लग रहा होगा। हाँ, और उधर एज क्राइटेरिया कैसे था कि 13 ईयर्स किड्स, 13 ईयर्स एंड बिलो किड्स कैटेगरी था, ओके, और मैं 14 ईयर्स का था। तो 14 years and and- above। हाँ, तो मैं ओपन में पढ़ता था। तो ओपन कैटेगरी में सब कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। तो तब उधर कॉम्पीट किया। सिलेक्ट होने के बाद प्रिपेयर तो किया था, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया था। मुझे एक प्रॉपर स्लीप स्केड्यूल दिया था, फिर व्हाट टू ईट, फूड का एक डाइट प्लान दिया था, और फिर मैं डेली मुझे कैसे प्रैक्टिस करनी है। उस वक्त एक चीज़ बहुत मज़ेदार लगी कि स्कूल को छुट्टी, तो स्कूल में उधर ही हमारे क्लास वाले में लेटर दिया था कि इज़ रिप्रेजेंटिंग इंडिया, सो ही नीड हॉलीडेज़ फॉर हिज प्रैक्टिस। और बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता था, और बहुत मस्ती मजाक होते थे, सब सुनते थे घर वाले, जो चाहिए वो मिलता था। और जैसे मेमोरी डाइट में डार्क चॉकलेट और ये सब चीज़ें रहते थे, तो एक अच्छा एन्जॉयबल एक्सपीरियंस भी था। और यस, यही जब मतलब। आप रिप्रेजेंट कर रहे थे तब ऐसी फीलिंग आई कि हाँ, मतलब मैंने ये डिसीजन सही लिया ये ज्वाइन करने का, या फिर हाँ, ये फन में था एट दैट टाइम, बिकॉज आपका एज 14 था तब? हाँ, उस वक्त ऐसे था कि नहीं, बस भाई मेरे को जीतना है। और हाँ, एट द सेम टाइम एज जब हम कंट्री को रिप्रेजेंट करते तो एक सीरियसनेस रहता है कि नहीं, मुझे आई हैव टू डू इट, खुद के लिए भी और हमारे कंट्री के लिए भी। सो तब एक डेडिकेशन के साथ मैं डेली फॉलो करता था वो चीज़। बट एट द सेम टाइम वो एक फ़न एनवायरनमेंट भी था हमारे टीममेट्स के साथ, और जब सीरियस प्रैक्टिस सेशंस रहते थे तो एक वो सीरियसनेस भी था। सो फन जब रहता था तब फन, और सीरियसनेस जब रहता था तब सीरियसनेस। बट ये फील बहुत अलग था कि नहीं, हम कुछ तो सही डिसीजन लिया है ऐसे। राइट। आपको क्या लगता है जो मेमोरी चैंपियंस होते हैं वो अपने ब्रेन्स का जो ट्रेन करते हैं वो डिफरेंट होता है किसी एवरेज पर्सन से? 100% डिफरेंट होता है, क्योंकि एवरेज पर्सन को एक आदत रहती है कि रिपीटेड यू नो वे में लर्न चीज़ें करना करना। या पढ़ना। बट मेमोरी एथले का कैसा रहता है, उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पता रहते हैं कि समझो स्पीड कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड है, उसको लर्न करना है तो उसको कैसे लर्न कर सकते हैं। तो उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स रहते हैं, तो वो उस हिसाब से प्रैक्टिस करते तो वो डिफरेंट रहता राइट। है। तो ये मतलब जब चैंपियनशिप्स ये उनके नॉर्मल रूटीन में भी फिर पार्ट बन ही जाता है, राइट? कि अगर उनको कुछ भी लर्न करना है तो उसी टेक्निक से वो लर्न करेंगे। 100% ये पार्ट बनाना ही पड़ता है। अगर कोई फिजिकल एथलीट भी हो, ये कोई कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, तो उसको वो डेली रूटीन में उसको लाना ही पड़ता है। तो मेमोरी एथलीट को ये रिकमेंडेड रहेगा कि वो जो भी सब्जेक्ट प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको वो हैबिट बनानी है कि उसको उसी वेज में उसको वो प्रैक्टिस करना है। और ये हैबिट बनाना भी जो चीज़ है ना, क्योंकि मैंने जब लगाया था तो मुझे स्टार्टिंग में नहीं हुआ था, तो मैं कभी भी करता था, कभी सुबह अटेम्प्ट करता था, कभी शाम को अटेम्प्ट करता था। फिर बाद में मेरे टीचर ने ये भी मुझे लाइक टिप दी थी, तू एक काम कर कि कुछ भी हो जाए, मतलब डिनर से पहले ये मेमोरी अटेम्प्ट होना ही चाहिए था। तो वो डिनर के साथ उन्होंने कनेक्ट करके दिया था। तो मतलब मेमोरी अटेम्प्ट और डिनर एक ही चीज़ है, ऐसे समझ के कर। तो मुझे वो करना ही था, मतलब जब भी याद आता था अभी डिनर का समय, उसके पहले मुझे वो मेमोरी अटेम्प्ट करना ही था। तो ऐसे रूटीन आपका था? हाँ, तो ओके। मैंने वैसा रूटीन बना के रखा था कि
जैसे मॉर्निंग है, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले मेडिटेशन करना है तो करना ही है, तो जिससे कि मिस ना हो, तो इससे ये रूटीन बहुत सही बना था। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक लगी मुझे, सो दैट विल बेनिफिट 100%। एग्जैक्टली। टेक्नोलॉजी ने हमें स्मार्ट बनाया है या सिंपली ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया है, या दोनों? स्मार्ट एट द सेम टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि अगेन कौन कैसे यूज कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन दैट, है ना। कुछ बच्चे सिर्फ टेक्नोलॉजी, गेम्स, फन, एंटरटेनमेंट, माइनक्राफ्ट, जो जो बच्चों के गेम्स रहते हैं उसमें यूज करते हैं। बट कुछ कुछ बच्चे, कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल सिखाते हैं, जैसे रोबोटिक्स लगा के या कोडिंग के क्लासेस लगा के, तो वो टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, या एआई से कुछ पढ़े। सो टेक्नोलॉजी हमें ग्रोथ में हेल्प करेगी अगर हम उसको सही तरीके से यूज करेंगे, राइट यूसेज। राइट यूज, या सही है। एक रिसर्चर्स की स्टडी में ये मिला था कि जो भी अगर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्ट लेता है, जो भी स्टूडेंट या फिर कोई भी, इन जनरल एज क्राइटेरिया नहीं है, सो उनका जो मेंटल एबिलिटी का जो लाइन होता है ना, वो ज़्यादा इंक्रीज होता है। हाउ डू यू अग्री ऑन दैट, और एनी टेक इफ़ यू डोंट अग्री ऑन दैट? सी, अभी जैसे आपने कहा कि जो भी कोई मेमोरी एथलीट, अगर मेमोरी या इन जनरल अगर वो इन एथलीट जनरल, भी नहीं है। हाँ ठीक है, कोई भी इंसान अगर प्रैक्टिस कर रहा है कोई एक पर्टिकुलर थिंग, 100% वो फील्ड में वो आगे जाएगा, और उसका जो आईक्यू लेवल है या मेमोरी का या इंटेलेक्चुअल जो लेवल है वो बढ़ेगा, बिकॉज यू आर प्रैक्टिसिंग दैट इज द थिंग। सो 100% बढ़ेगा। वो मतलब रेगुलरली प्रैक्टिस से होता है, या फिर आप कुछ चीज़ में, जैसे जैसे अगर कोई एक्टिविटीज़ है, अभी किसी को पूरी तरह से मेंटल मैथ या अबैकस पसंद नहीं, बट उसे क्यूब सॉल्व करना पसंद है, सो ही और शी इज जस्ट सॉल्विंग द क्यूब, तो क्या उसमें भी इंक्रीज होगा जस्ट बिकॉज दे आर डूइंग क्यूब, और या फिर नहीं होगा क्योंकि वो इतने कंसिस्टेंट नहीं है दूसरे ट्रिक्स के साथ? हाँ, इसमें कैसे, अभी जो क्यूब कर रहा है, जो मेंटल मैथ्स नहीं कर रहा है, 100% वो मेंटल मैथ्स में स्लो रहेगा, मतलब कैलकुलेशन करने में। बट वो जब वो क्यूब कर रहा है, क्यूब की वजह से उसका फोकस बढ़ रहा है, बट जब वो चीज़ वो एक दो बार भी प्रैक्टिस करेगा, फोकस के साथ सीखेगा, तो वो एवरेज लोगों के हिसाब से वो ज़्यादा जल्दी सीखेगा और ज़्यादा जल्दी ग्रास्प करके स्पीड बढ़ा पाएगा, क्योंकि ही इज़ ऑलरेडी इन समथिंग रिलेटेड टू दैट फील्ड, लाइक मेमोरी फील्ड, है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी उसके ब्रेन को कुछ ना कुछ इसमें ट्रेन कर रहा है। जैसे नॉर्मल भी बच्चे हो जो नहीं कर रहे ऐसे कोई क्लासेस, या नहीं कर रहे ऐसे कोई ट्रिक्स, या नहीं यूज़ कर रहे, वो भी 100% स्मार्ट ही है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो बहुत फोकस्ड तरीके से पढ़ाई करते हैं, तो उनको ऐसे नीड नहीं है कि वो जाइए, क्योंकि वो उतने अच्छे से, उतने फोकस से दे आर स्टडिंग, है ना। तो वो भी अगर जब वो क्यूब में आएंगे तो वो फास्ट सीखेंगे, है ना। वो भी है। और कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं कि वो पढ़ाई में स्लो रहता है, बट क्यूब में फिर फास्ट करके वो टैकल कर सकता है ऐसे। ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा मतलब होगा, हाँ, डिफरेंस हाँ, होगा हाँ। उन दोनों का, बट या वो ज़्यादा सीख लेंगे। सीखने का स्पीड, अंडरस्टैंडिंग का स्पीड, वो मैटर करेगा। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने सबसे ज़्यादा टाइम लिया है क्यूब सीखने में? अगर मैं होती तो मैं ही बोलती हूँ। मुझे अभी भी नहीं आता है वो। ऐसे मैंने जब चालू किया था ना, तो एक हमने छोटे बच्चे को ट्रेन किया था, उसको मैं सही बताऊँ, उसको बोलने भी नहीं आता था, लाइक 2 years का था वो। 2 years का? हाँ, उसको तो हमने उसको ट्रेन कैसे किया था मैं बताता हूँ आपको, कि उसको कलर्स भी नहीं पता थे वैसे तो हमारे पेरेंट्स सर ने थे। एनरोल करवा दिया? हाँ, मुझे तो पर्सनल ट्रेनिंग के लिए लगाया था, तो मैं उसके घर जाता था, और उधर पेरेंट मुझे बोलते थे कि लाइक आप सर कुछ मत करिए, बस उसको क्यूब को होल्ड पकड़े उसके हाथ के साथ, उसको बताइए RU, ये रेड कलर है, इसे ऐसा फार्मूला लगाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, ये है मैंने करीब करीब 15 महीने किया, उसको सिखाया, लाइक 1.5 साल। मुंबई में एक इवेंट था RCT मॉल में, युवराज नाम है वो बच्चे का। तब हम उसको बचपन से मैं सिखाता था, मुझे ही लाइक बिलीव नहीं होता था कि कैसे करेगा। लास्ट में जब वो 3.5 साल का वगैरह हुआ, तब उसने लाइक लास्ट लेयर तक करता था, और फिर हमने डिसाइड लिया उसके पेरेंट्स ने कि सर इसको हम इधर लेके जाएंगे और यंगेस्ट क्यूबर ऑफ इंडिया का इसके लिए अप्लाई करेंगे। और एक बच्चा था उधर प्रिपेयर किया था, एक टीचर ने, गुजरात से वो टीचर थे। सो उधर हम गए, तब हमारे युवराज ने 10 minutes 53 समथिंग सेकेंड्स में 3x3 सॉल्व कर लिया, और लाइक हम ही सरप्राइज थे कि इसने कैसे किया। 3 साल का था ना तब वो? हाँ, और लाइक तो वो सबसे मेरा ज़्यादा लाइक लेंदी गया,
बट ऐसे एवरेज बच्चों के साथ बोलूंगा तो 4 से 5 दिन लेते हैं 4 से 5 दिन। या मुझे अभी भी वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, 3 साल के लड़के ने सीख लिया फाइनली हाँ और वो वैसे कर रहा है। बहुत सारे हैं वैसे वो देख के और सारे पेरेंट्स अभी ये सी 2025 में हमने एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स किया मेरे स्टूडेंट्स है वारजे ब्रांच में योशा पाटिल एंड हिया पाटिल सो दे आर द यंगेस्ट ट्विंस इन इंडिया दोनों ट्विंस है टू सॉल्व द पिरामिड्स क्यूब अंडर 30 सेकेंड्स सो ट्रायंगुलर क्यूब है पिरामिड्स तो आपसे सीखा उन्होंने? हाँ मेरे से सीखा है और हमारे एकेडमी थ्रू उन्होंने रिकॉर्ड अप्लाई किया एंड दे आर द यंगेस्ट नाउ अरे वाह, कांग्रेट्स। या थैंक यू सो मच आपको क्या लगता है स्कूल्स में अगर आपके हाथ में अथॉरिटी होती, व्हाट वुड बी योर चॉइस? ऐसी कौन सी स्किल्स होती जो इंडियन स्कूल्स में आप देखना चाहते या उसे लाते? इंडियन स्कूल्स में अभी जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज़ रियली गोइंग गुड बट हमारे इसमें एक चीज़ हमेशा से आती हुई है कि रट्टा मारो कुछ नहीं होता तो करो लर्न करो एग्जाम से पहले तो जो एक एग्जाम्स का प्रेशर है या उसको पेरेंट्स अगर अलग तरीके से टैकल करे तो बच्चे और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं मैं बताऊँ इंडिया के बच्चों में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है 100%। बस कुछ सराउंडिंग्स से या कुछ लाइक एनवायरनमेंट और उसके अंदर रह के उनको लिमिट किया जाता है तो स्कूल्स में भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा एक्टिविटीज़ रखने चाहिए अब वैसे बहुत सारे स्कूल्स में भी चेस वगैरह है एंड ऑलरेडी इन सम स्कूल रूबिक्स क्यूब इज ऑल्सो देयर बट एट द सेम टाइम जैसे हम अगर किसी अलग कंट्रीज़ का भी ले जैसे जापान वगैरह सो दे गिव मोर वैल्यूज टू स्पोर्ट्स ऑल्सो इंडिया में भी वैसे बहुत ज़्यादा देते हैं बट स्टिल कि एक हम एनवायरनमेंट बदल सकते हैं लाइक एजुकेशन सिस्टम इज़ गुड अच्छा सिखाया जाता है अच्छा सब होता है बट वही बच्चों का माइंडसेट हमें टीचर्स के थ्रू और पेरेंट्स के थ्रू इम्प्रूव करवाना है और ये एक्टिविटीज़ तो 100% होनी ही चाहिए क्योंकि लाइक एक ही चीज़ कर करके बच्चे बोर हो जाते हैं अभी तो कितने फास्ट हो गए हाँ ना। वो भी है, राइट। सो आई ऑल्सो थिंक कि दीज आर सम एक्टिविटीज दैट एक्चुअल प्रॉपर ऐसे टाइम टेबल के शेड्यूल में होनी चाहिए। द टाइम टेबल स्कूल का ऐसे होता है 100% मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी। आप इमेजिन करो ना जैसे देखो अगर कोई स्कूल है उसमें इतने सारा एक्टिविटीज़ है एट द सेम टाइम बहुत सारा एजुकेशन भी है बच्चा कितना एंजॉय करेगा स्कूल जाने को हाउ मच ही विल एंजॉय और जस्ट उसको अगर ऐसे फील होगा कि बस मुझे ये एक ही चीज़ कराने के लिए तो वो प्रेशराइज फील करेगा वो अच्छे से सीखेगा नहीं और कोई भी चीज़ अगर हम इंटरेस्ट के साथ नहीं ना सीखते वो टोटली वेस्ट ही है ये तो है, बेच के भी वो कुछ वेस्ट भी है किया। हाँ बस करो 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 वो नहीं होगा बस वो इंटरेस्ट डेवलप कराना वो एक चीज़ है तो वो 100% करना चाहिए बहुत सारे स्कूल्स में इम्प्लीमेंट होना चाहिए अबेकस सच्ची हेल्प करता है क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में? देखो मैं सच बोलूँ तो अबाकस में 4 ही चीज़ें सिखाया जाता है एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन बेसिक मैथ्स बेसिक। के और ये एक जापानीज मेथड है तो फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक अबाकस हेल्प करेगा जस्ट फास्ट कैलकुलेशंस के लिए बट एज पर आर करिकुलम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम का मैथ्स का करिकुलम है उसमें अबाकस बस इसी चीज़ के लिए हेल्प करेगा टू क्रॉस चेक द आंसर्स क्योंकि आप देखोगे जब हम स्कूल में जो सम्स करते हैं उसमें स्टेप्स मांगते हैं है ना लाइक 1 8 2 प्लस 3 4 लाइक 24 प्लस 52 हो तो कैरी फॉरवर्ड कैसे लिया वो मांगते हैं अबाकस में तो क्या मेंटली करेगा और लिखेगा आंसर लिखेगा, तो वो बोलेंगे कैसे किया आपने हमारे इसमें तो स्टेप्स मांगते हैं ना कि हाउ यू हैव डन इट Yes. सो जस्ट टू क्रॉस चेक द आंसर अबाकस इज गुड एंड द चाइल्ड विल बी श्योर कि यही आंसर है करके है ना मेरा तो कहना है कि वैदिक मैथ्स ये बहुत अच्छा है डिफरेंस क्या है अबेकस और वैदिक में? वैदिक मैथ्स जो है उसमें जो ट्रिक्स है लाइक वो तो इंडियन है सबसे पहले तो वो बहुत प्रूवन है और बहुत सिंपल है ना और वैदिक मैथ्स लाइक 10th स्टैंडर्ड तक आप यूज़ कर सकते हो बट अबाकस 4th 5th के बाद विल बी नॉट यूजफुल ओके। है ना क्योंकि अबाकस में बस आप 4 ही चीज़ें सीख सकते हो बट वैदिक Basic. मैथ जैसे हमारा ये करिकुलम चल रहा है तो वैदिक मैथ्स में वो सब इंक्लूड रहेगा अलजेब्रा ज्योमेट्री एवरीथिंग प्राइम ज्योमेट्री नंबर आल्सो? हाँ वैदिक मैथ्स में ये सब रहेगा बाप रे। तो वैदिक इज लाइक इंडियन भी है एंड प्लस लॉन्ग टर्म के लिए भी है और जिस जो एक्चुअल मैथ्स में हेल्प कर सकता है टिल हाँ 10th। 100% सो टिल 10th राइट, जो टिल बेसिक 10th में। उसके आगे भी हेल्प करेगा क्योंकि वैदिक Basic मैथ्स में वो सारे calculations. कंसेप्ट्स है राइट। और अगर हम अपने इंडियन एजुकेशन के मार्किंग पैटर्न जो हम स्टेप्स वाइज जाते हैं तो वो भी वैदिक मैथ्स में स्किप नहीं है, राइट? हाँ थोड़ा सा सेम समय से जैसे कैलकुलेशन करते वक्त हम हमारे वाले स्कूल वाले मेथड में अगर राइट साइड से कर रहे हैं कैलकुलेट तो वैदिक मैथ्स में लेफ्ट साइड से कैलकुलेट Left से करेंगे होता है, okay. या कुछ ट्रिक्स लाइनिंग ट्रिक्स है तो थोड़ा सा सेम है तो वो सिंपल वैदिक मैथ्स सिंपल जाएगा सिंपल जाएगा, ओके। हम्म हम इतना जल्दी भूलते क्यों है एज कम्पेयर टू आवर प्रीवियस जनरेशन? वी लूज फोकस सो इजीली, मतलब कंसंट्रेशन करना बहुत टफ है। इतना जल्दी हम भूलते क्यों है क्योंकि सी
अभी बहुत फास्ट हो गया है। पहले बोलते थे, अभी भी बोलते हैं लोग कि छोटे बच्चे का जो फोकस का स्पैन है वो 40 मिनट्स है। सच बोलूँ तो 15 सेकंड भी नहीं है, 10-10 लाइक सेकंड को स्क्रॉल करते हैं। तो वो जो प्रैक्टिस हुई है अभी के जनरेशन को, देखो ना, अभी से बचपन से जब लाइक हम हुए थे तभी तभी तो फ़ोन आए थे, स्मार्टफोन। तो ये जैसे जैसे हो रहा है तो बच्चों को क्विक ये यू नो जल्दी जल्दी करने की आदत रही है, तो उनका फोकस स्पैन वैसे डिक्रीज हो रहा है ना। तो यही एक रीज़न है। तो उसको भी देखो, अभी कैसे लाइक टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये होगा, अभी उसको हमें कैसे काबू में रखना है और कैसे एक फोकस का एक लिमिटेड टाइम रखना है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे रख सकते हैं, Point. है ना। तो वो जैसे जनरेशन आगे आगे बढ़ेगा तो और कम फोकस स्पैन होगा, बट हमें उसको इम्प्रूव करने के लिए वी हैव टू मेक सम हैबिट्स। बेनिफिट्स भी है टेक्नोलॉजी के बहुत सारे, 100%। बट जो अटेंशन स्पैन हमने डिवाइड कर दिया है वो भी बहुत वास्ट है, वो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में अगर जो हम मैनेज करें तो। करेंगे तो वो होगा, राइट, फोकस जैसे बढ़ेगा। आपके जैसे अगर कोई क्यूब सीख ले या कोई आउटडोर एक्टिविटीज रख ले, आई गेस अच्छे से हम फिर मैनेज कर सकते हैं। हाँ, कोई भी एक्टिविटी, ऐसे ही नहीं कि क्यूब सीखे या देखो, बच्चों को अगर कोई भी एक्टिविटी हो, जैसे अगर वो कोई कबड्डी, क्रिकेट, कोई भी क्लास को जा रहा है ना, आई टेल यू दैट इज ऑल्सो डेवलपिंग देयर फोकस, है ना। क्रिकेट खेलने में भी ऐसे विदाउट फोकस नहीं होगा, कितने तेज स्पीड से वो बॉल आता है, कितना फोकस लगता है। जैसे टेनिस खेल रहे तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए आप, तो क्यूब में तो वही है ना कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन, तो कोई तो स्पोर्ट्स होना ही चाहिए, है ना। ये हाँ, तो छोटे बच्चों को 3 एक्टिविटीज होने चाहिए मेरे हिसाब से टू डेवलप देम वेरी गुड। एक तो होना चाहिए मेमोरी स्पोर्ट, एक दूसरा होना चाहिए फिजिकल स्पोर्ट, और तीसरा म्यूजिक होनी चाहिए उनके लाइफ में, है ना। सो ये 3 क्लासेस होने चाहिए। सो यू कैन सी कि वो बच्चों में क्या डिफरेंस रहेगा। ये अगर 3 क्लासेस, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये रिकमेंड किया और वो बच्चे दे आर डूइंग ग्रेट, आई टेल यू, लाइक ये रिकमेंडेड है लाइफ में। पर पर्सनालिटी अलग होता होगा ना उनका। हाँ, 100%। कितने टाइप के मेमोरी टेक्निक्स होते हैं, और अपने ब्रेन, अब हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है जब हम उसे रोज प्रैक्टिस करते हैं वो टेक्निक्स को? 6 to 7 टाइप्स ऑफ मेमोरी टेक्निक्स है, जिसमें 4-5 जो फेमस है, जैसे बोलेंगे मेमोरी पैलेस, द लूसी टेक्निक कहा जाता है उसको, और फिर एक चंकिंग की मेथड टेक्निक है, फिर स्टोरी लिंकिंग मेथड है ना। ये 3-4 जो टेक्निक्स है वो मोस्टली यूज़ किए जाता है, तो उसमें सबसे बेस्ट रहती है वो मेमोरी पैलेस जो टेक्निक्स है। आपने क्या पूछा था, कितनी टेक्निक्स होती है? कितनी, हाँ वही। सो ये 3-4 टेक्निक्स है, जिसमें ये जो ये वाली टेक्निक है, लूसी वाली मेमोरी पैलेस, तो ये मोस्टली यूज़ की जाती है। और ये टेक्निक लॉन्ग आंसर्स या कोई भी चीज़ें याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक माइंड मैपिंग की भी टेक्निक है, माइंड मैपिंग। हाँ, सुना है, बट एग्जैक्टली वो कैसे रहती है? लाइक माइंड मैपिंग में कैसा रहता है, एक लाइक ब्लैंक पेज पे जैसे हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो कैसा रहता है, हमें याद नहीं रहता चीज़ें, हम पढ़ते 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 वी डोंट रिमेंबर। सो हमें एक माइंड मैप बना रहता है, तो उसमें एक मेन चीज़ रहेगा, कैरेक्टर, फिर उसको हम ब्रांचेस बनाएंगे, है ना। जैसे द रिच डैड पुअर डैड ऐसे एक बुक हो, तो ऐसे बीच में कुछ तो ऐसे हम आइकॉन ड्रॉ करेंगे कि रिच और डैड पुअर डैड, ऐसे ड्राइंग, जिससे कि वो याद रहे। फिर उसके ब्रांचेस, जैसे लेसन 1 है, लेसन 2 है, तो उसमें जस्ट ऐसे कुछ वर्ड्स रखेंगे जिससे हमें पूरा चीज़ याद होए। ओके, सो हमारा परसेप्शन वो आंसर को लेके या वो पेज को लेके, हम क्या सोच रहे हैं ना, हम उससे रिलेट करें। हाँ, हमारा माइंड उसको कैसे जल्दी से लिंक कर रहा है। जैसे ये पेज पढ़ा और मुझे मेरे माइंड में सबसे पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, जैसे मेरे को आया कि हाउ टू ग्रो, तो मैं ग्रो शब्द लिखूंगा और फिर मुझे याद आएगा हाँ, ग्रो से ये चीज़ें थे, तो जस्ट रिकॉल में ये चीज़ें हेल्प करेंगे। ओके, और अपने ब्रेन को कैसे, हमारा ब्रेन कैसे रिएक्ट करेगा अगर हम ये कंसिस्टेंसी मिलाएंगे? ये जब हम कंसिस्टेंसी में लाएंगे, आप देखोगे स्टार्टिंग में तो रिएक्ट करेगा कि ये क्या कर रहे हो आप, बोरिंग चीज़ लगेगी, है ना, होएगा नहीं। बट थोड़ा आप प्रैक्टिस करोगे, बाद में यू विल रियलाइज़ दैट कि आप जो भी चीज़ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, वो जल्दी से आपको मेमोराइज हो रही है, और आप वो जल्दी से जब चाहिए तब रिकॉल भी कर पा रहे हो। सो ये होगा, और ये बहुत केसेस में बच्चों के साथ या कोई भी एडल्ट हो, किसी के साथ होता नहीं है। जो हम मेमोराइज करते हैं, हम वो रिकॉल नहीं कर सकते जल्दी से, जब चाहिए तब रिकॉल नहीं कर सकते। हाँ, तो जब हम इसको सही तरीके से करेंगे तब ही ये हम रिकॉल कर पाएंगे। एक्चुअली बेसिकली मेमोरी कैसे वर्क करता है, मेमोरी का प्रोसेस क्या है, मेमोरी मतलब क्या, एनकोडिंग समथिंग, स्टोरिंग इट एंड रिकॉलिंग इट। जब आप उसको एनकोड, मतलब उसको आप जब मेमोराइज ही सही से नहीं करोगे तो वो रिकॉल में दिक्कत देगा। सो व्हेन यू आर मेमोराइजिंग समथिंग, जस्ट मेमोराइज इट इन अ गुड वे, है ना।
ऐसे। ओके एंड देन वो हमें याद रहेगा। हाँ, हमारा माइंड जो रहता है, हमारा मेमोरी जो रहता है ना, वो फनी थिंग्स को जल्दी से याद रखता है। और पिक्टो मेमोरी मतलब पिक्चर्स वगैरह, इमेजिनरी स्टोरीज, ये चीज़ें को जल्दी मेमोराइज लाइक जल्दी फनी याद। थिंग्स को लगता है, मुझे लगा कि शायद से सैड या इमोशनल को ज़्यादा जल्दी लेता है। फनी जैसे देखो बच्चों को जोक्स जोक्स याद रहता है। हाँ, अभी ये नेगेटिव थिंग्स का भी अभी मैंने बताया नहीं, द रीज़न बीइंग क्योंकि कुछ मेमोरी उसके लिए क्या करते हैं, उसमें से नेगेटिव चीज़ें लिंक करते हैं उसके लिए लर्न करने के लिए, ठीक है। हाँ, उसके साथ इमोशन कनेक्ट रहता है, जब है ना, नेगेटिव चीज़ रहती है उसके साथ एक इमोशन, हमारा सैड इमोशन वो सब कनेक्ट रहता है, तो वो भी जल्दी से मेमोराइज होता है ना। सब पुरानी सब नेगेटिव बातें सबसे पहले याद रहती है, ये ट्रुथ है ना, राइट। है ना। बट एट द सेम टाइम आप देखो, जब हम खुश रहते हैं उसके साथ भी एक इमोशन कनेक्ट है ना। एक अच्छी मेमोरी। हाँ, एक अच्छी मेमोरी कनेक्ट है, तो वही वो उसके साथ लिंक करता है, इसलिए वो रिकॉल हम जल्दी कर पाते हैं। तो ज़्यादातर हम यही प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे उसको अच्छे मेमोरी के साथ कनेक्ट करके हम उसको मेमोराइज करें। अगर हम ऐसे लाइक सैड इमोशंस के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो आदत वो बन जाएगी कि वो कनेक्ट करके मेमोराइज तो होगा, दोनों सेम ही वर्क करेगा। बट नेगेटिव हम ज़्यादा लेंगे और सैड हाँ, इमोशन ज़्यादा लेंगे। हाँ, अच्छा, तो ये भी हमारा माइंड टेक करेगा कि हम कौन से इमोशन को पकड़ के उसे रिकॉल करना चाहते हैं। हाँ। ओके, ये अलग था, ये मुझे नहीं पता था। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यही ट्राई करना है कि हम उसको कैसे फ़नी वे में कर सकते हैं लर्न, फनी एंड इजी गोइंग वे में। ईज़ी गोइंग वे में। हाँ, उसको जोक भी बनाया तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। अगर कोई सीरियस आंसर उसको आपने जोक बना के भी लर्न किया ना, हमें क्या, हमें तो मेमोराइज़ रिकॉल करना है उसको, तो उसको बस उस टेक्निक से आप मेमोराइज़ करो। इसलिए कितना डिफरेंस आ जाता है कि कोई एक चीज़ें फन में सीखता है और कोई एकदम सीरियस होके दे टेक थिंग्स लाइक ये करना ही पड़ेगा। हाँ। सो ये ओके, ओके, गॉट इट। और कौन सी आपकी आपने टेक्निक्स बोली थी इसके माइंड मैपिंग के अलावा? अ, मेमोरी पैलेस, जैसे मेमोरी पैलेस जो टेक्निक रहती है, मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि जैसे आपके घर से आपके स्कूल तक बच्चों के लिए, तो आप सुबह उठ के हम बेडरूम में रहते हैं, फिर बाथरूम, फिर हॉल में ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए, फिर पार्किंग और फिर बस, ऐसे प्लेसेस का पैलेस बनाना रहेगा उनको, एक एक प्लेस जो उनको बहुत अच्छी तरीके से याद है। ओके, फैमिलियर है वो। हाँ, फेमिलियर है। और वो प्लेसेस में जब हम कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ मेमोराइज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल तो कोई बड़ा नंबर लर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्लेसेस में हम वैसे लर्न कर सकते हैं कि मेरे रूम में 72 नंबर है, हॉल में 56 है, तो वो जल्दी याद रहेगा। और एट द सेम टाइम उसको इमेजिनरी मेमोरी लगानी है, तो ये प्रैक्टिस से होगा। स्टार्टिंग में आपको डिफिकल्ट लगेगा, तो याद रहेगा कि हाँ 72 वॉज इन द रूम 56, ऐसे वो रिकॉल करते हैं, यही दैट इज़ द टेक्निक। तो वो मेमोरी पैलेस बहुत पक्का होना चाहिए। जब मैं ये मेमोरी पैलेस करता था तो मैं मेरे चैम्पियनशिप को जाने से पहले टर्की में मैं घूम के आया था मेरा पूरा मेमोरी पैलेस, ये कैसा दिख रहा है इधर, क्या इमेजिन कर सकता हूँ मैं, है ना। तो ऐसे और फिर वही मेमोरी पैलेस जो हमने क्रिएट किया है, वो सिर्फ उसी सिचुएशन के लिए हमें याद रहेगा जो हम याद रखना चाहते हैं, या फिर हम उसे लिंक कर सकते हैं कि कोई और चीज़ लर्न करने के थ्रू भी? कुछ भी लिंक लर्न करने के लिए उसको लिंक कर सकते हैं, हर वक्त अलग अलग स्टोरी उस मेमोरी पैलेस के अंदर, है ना। जैसे कोई सेंटेंस हो, है ना, तो वो सेंटेंस की स्टोरी बनाने की, वो कि जैसे अ कार क्रैश्ड, अभी कार तो रोड पे क्रैश होती है, अगर मैंने ये मेरे इस रूम में बना कि मेरे रूम में एक कार क्रैश हो गई, तो मुझे ये याद रहेगा ही रहेगा कि, है ना, इट इज़ मेकिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग नॉनसेंस। सो वो याद रहेगा मुझे चीज़ कि हाँ, रूम में कार क्रैश हुई थी। अगर ऐसे कोई आंसर होगा कि अगर कार उसके क्रैश्ड आंसर और आगे हॉल में उसके आगे क्या ओके, सो आप नॉर्मल रूट को हम छोड़ देते हैं, कार क्रैश जैसे रोड पे होती है, और हमने वो लोकेशन चेंज करके रूम कर दिया, जस्ट टू रिमेंबर दैट आंसर, क्योंकि उसका मिड पॉइंट है कार क्रैश। हाँ, ऐसे ओके, और उसको ओके। कैसे हम रिलेट कर सकेंगे और उस सिचुएशन के हिसाब से। ओके, तो इसमें मेमोरी पैलेस में आपको वो नहीं करना है जो वेरी सिमिलर है, आपको उल्टा करना है जिससे आपको वो चीज़ याद रहे। हाँ, कैसे, राइट? उसको फनी बनाओ, जैसे आपने कहा, इन सम लाइक केसेस उसको निगेटिव थोड़ा सा बना सकते हैं, है ना, और वैसे लर्न करना है वो। मेमोरी स्पोर्ट वर्ल्ड वाइड अटेंशन ले रहा है अब, बहुत पॉपुलर हो रहा है मेमोरी स्पोर्ट। लोगों को पहले पता भी नहीं था, अभी ये प्रॉपर लोग, अभी सारी वीडियोस वगैरह, कॉम्पिटिशन, चैंपियनशिप सब तो लार्ज स्केल पे हो रही है। आपको क्या लगता है कौन सी कंट्रीज इसमें रूल कर रही है, एंड वाई दे आर रूलिंग इट अकॉर्डिंग टू यू? अभी तो मंगोलिया रूल कर रही है ना, मेमोरी गेम्स में।
तो क्योंकि अगेन सेम वहाँ पे वो उतना उनको प्रैक्टिस में रख रहे हैं बच्चों को, उनके स्कूल करिकुलम्स में भी वो चीज़ें हैं, और दैट इज़ द थिंग, है ना। बट इंडिया में भी हमारे तमिल साइड में, तमिलनाडु साइड में देयर आर चिल्ड्रन हु आर रियली प्रिपेयरिंग वेल, है ना। सो yeah, India will be the country that can do good, but again the thing is like consistency, practice, how parents are going in that field. आपको मैं बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, मतलब लोग ज़्यादा इंडिया में तो थोड़े कम अवेयर हो रहे हैं, बट वर्ल्ड वाइड मेमोरी बहुत ग्रो कर रही है। मेमोरी ओलंपिक्स आया है, ये सारे चीज़ें हैं, है ना। सो और हमारे इधर बच्चों में बहुत सारा पोटेंशियल है, किस बच्चे में क्या छुपा है पता नहीं रहता, लाइक ऑल आर डायमंड्स आई टेल यू, ठीक है। तो उनको बस हमें बाहर निकालने के लिए उनको डिफरेंट डिफरेंट लाइक कोचेस टीचर्स के साथ लेके उनका पोटेंशियल निकालना है बाहर। सो दैट इज द थिंग। How beautiful line you said, all are diamonds. Wow, that is so good. And actually it is. We are just, sometimes we neglect because we don't able to see it, their Yeah. talent. So that's why we think कि नहीं वो नहीं है, but it's just unhidden. What are the common mistakes do beginners make during memory competitions? When they go, what are the common mistakes? Your example, मैं what ही when you are beginner 14? मैं वही सोच रहा था, मैं ही बिगनर था। ओवर थिंकिंग, Overthinking? It cause chaos, right? है ना, क्योंकि जब बहुत फोकस लगता है रिकॉलिंग में, है ना। मैं मेरा उधर 4th रैंक आया था टर्की में वर्ल्ड वाइड, है ना। मुझे वो अभी भी याद है, मैंने मेमोरी पैलेस टेक्निक ही यूज़ की थी, और उसमें मैंने तब अटेम्प्ट किया था 593 नंबर्स का, ठीक है। 5 मिनट्स में मैंने 593 नंबर्स सीक्वेंस में लर्न किए थे, 010101001010 ऐसे, My God. और उसका रिकॉलेशन प्रोसेस चालू था, और उसके 8th ब्लॉक में, 7th ब्लॉक में, ठीक है। तो एक ब्लॉक में हम 9 नंबर्स लिखते थे। तो जब मैं वो लिख रहा था, मुझे अभी भी वो पल याद है, तभी मुझे थॉट आया था कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। और उस वक्त जो नंबर्स का पैटर्न था, जैसे पहला था 0000101101010 ऐसे पैटर्न था। तो मैंने वो सोच की वजह से वही पैटर्न उल्टा किया, मतलब पहले मैंने 1010 लिखा, फिर 101 लिखा और 101 लिखा, जो कि 101 पहले था। Okay. तो वो अभी भी मुझे याद है। तो मुझे वो लाइक विचार आता उस वक्त कि अरे मैं जीतूंगा नहीं, क्या होगा ऐसे। बट उसके बाद के लाइक सारे नंबर्स मैंने फोकस के साथ लिखे। बट वही जब मैं वो चीज़ फोकस कर रहा था, तो वो एक छोटे थॉट ने मेरा वो एक चीज़ बदल दिया, है ना। किड्स कैटेगरी में तो मैं फर्स्ट ही था वैसे तो, बट दैट इज़ द थिंग कि ओवर थिंकिंग मिस्टेक होता है। हमारा जो लक्ष्य है, लाइक जस्ट हमें करना है, जस्ट गिव योर बेस्ट, ये याद रख के करो। बाकी हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे ना, तो वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता है, यू डोंट हैव आपको टाइम बैरियर है इसमें। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप खुद को कंसोल कर लोगे या हो जाएगा। एटलीस्ट बाकी सब स्पोर्ट में एटलीस्ट थोड़ा कुछ तो सेकंड्स मिलते हैं कि आपके ओवर थिंकिंग को पॉज करने के लिए, तब तक कुछ नुकसान नहीं होगा। आगे वाला वो खेलेगी तब मुझे दूसरा मारना है, वो बॉल आएगी तब मुझे मारना है। तो इसमें तो आई गेस टाइम बैरियर है। आपने जब सोचा होगा और उतने में आपको कैलकुलेशन शुरू हो गया होगा। और आगे मतलब मुझे ये भी हुआ था, जब मेरा अटेम्प्ट चालू हुआ था, तो मेरे सारे टीचर्स मिलके दिए गए थे मेरे को, आज ऑल द बेस्ट, यू कैन डू इट करके ऐसे सब कुछ। तो मुझे अच्छा भी लगेगा कि सारे बेस्ट विशेस थे। बट वही अगेन कि एक आता है ना विचार माइंड में, तो मेमोरी एथले का यही एक खासियत होना चाहिए कि आप अगर एक मेमोरी एथले हो, या आप अगर मेमोरी गेम्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको पीस ऑफ माइंड और वो स्टेबिलिटी ऑफ माइंड भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही नहीं कि बस आ रहा हो, लर्न कर रहे, रिकॉल कर रहे, वो तो कोई भी कर सकेगा। बट एक वो लेवल पे, वो स्टेज पे जब हम परफॉर्म करेंगे, तो वो लेवल की स्टेबिलिटी, वो लेवल का फोकस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ऑडियंस भी प्रेशर वो भी अलग होता है, सामने जब आपके ऑडियंस होते हैं। और अब तो बहुत यंग थे, लाइक 14 इयर्स की। ओ बाप रे, दैट वाज अ लॉट टू टेक। फॉर्मेट क्या चेंज हुआ है मेमोरी कॉम्पिटिशन्स का, क्योंकि न्यूरो साइंस भी और टेक्नोलॉजी दोनों इन्वॉल्व हुई है अब एज कम्पेयर टू द प्रीवियस। There are different organizations who organize the memory championships. सो फॉर्मेट इन द सेंस सब्जेक्ट्स बता देता हूँ मैं। तो फॉर्मेट एक रहता है सॉफ्टवेयर फॉर्मेट, एक रहता है लाइक रेगुलर फॉर्मेट। तो मैंने सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में दिया था, एक सॉफ्टवेयर में जिसमें नंबर्स फ्लैश होते हैं, फिर वो पेज ब्लैंक हो जाता है, और फिर उसमें हमें टाइप करना रहता है नंबर्स वॉट एवर इट इज़। और जो पेज फॉर्मेट रहता है, उसमें जो नंबर्स है या जो डेक ऑफ कार्ड है, उसको लर्न करना, उसको रिकॉल करना है ना।
तो सब्जेक्ट्स यही फॉर्मेट रहेगा, मतलब आपको लर्न करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा और रिकॉल करने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, है ना। तो ये एक सॉफ्टवेयर फॉर्मेट में होगा और ये एक लाइक बुक और पेन फॉर्मेट में, है ना। और सब्जेक्ट्स कहा जाए तो नेम्स एंड फेसेस करके एक सब्जेक्ट है। सो नेम्स एंड फेसेस में क्या रहेगा कि आपको अलग अलग चेहरे दिखाए जाएंगे, उसके अलग अलग नाम्स रहेंगे और करीब करीब 100 फेसेस दिखाए जाएंगे, है ना। तो वो 100 फेसेस जब आपको दिखाएंगे तो आपको हर एक का नाम लर्न करना है। वो नेम्स एंड फेसेस भी मैंने अटेंड किया था। अभी इधर क्या इंडिया में कैसे हमें लाइक इंडियन सर नेम्स और नेम्स आर लिटिल बिट डिफरेंट, राइट। लाइक ऋषभ और आरव, अर्जुन, ऐसे नाम रहते हैं। बट उधर कैसे जॉन, कैटल, ऐसे अलग अलग नाम, तो वो प्रोनाउंस करने में और स्पेलिंग भी लिखने में दिक्कत आती थी। तो मतलब वो मेमोरी गेम्स में तो वो एक अलग, और फिर उनके चेहरे याद करने में तो एक मेमोरी, वो एक सब्जेक्ट है नेम्स एंड फेसेस। फिर है स्पीड कार्ड। स्पीड कार्ड मतलब डेक ऑफ कार्ड को लर्न करना, है ना। 17 सेकंड्स तब किया था, 17 सेकंड्स में लर्न किया था एक मेमोरी एथले ने उधर। सो मैं भी सरप्राइज था कि कैसे किया 17 सेकंड में डेक ऑफ कार्ड लर्न करना। सो वो एक है कितने होते हैं उसमें पूरे? 52, ऑल 52 कार्ड्स, लाइक एस देन हार्ट्स, स्पेड, एंड पूरा सीक्वेंस वाइज, राइट? आप कैसे भी वो उधर कैसे भी बिगाड़ के देंगे आपको, आपके डेस्क पे रखेंगे और टाइमर लगाएंगे 5 मिनट का, देन यू हैव टू मेमोराइज इट। आप मेमोराइज करोगे सारा एंड आफ्टर 5 मिनट्स यू हैव टू सी टू द ऑडियंस, ऐसे देखोगे और फिर बताने सारे, है ना। इसकी मेरे यूट्यूब पे एक वीडियो है। तो लाइक मैंने भी किया ये अटेम्प्ट कि मुझे एक डेक ऑफ कार्ड दिया है लाइव और मैंने लर्न किया है। मैंने बहुत स्लो किया है हालांकि, बट आई हैव डन दैट सब्जेक्ट। तो ये स्पीड कार्ड्स करके एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और फिर बाइनरी डिजिट्स, जैसे मैंने कहा 0 1 0 1 0 का एक नॉर्मल इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर लर्न कर सकता है सीक्वेंस में, बट 100 200 नंबर कोई नहीं कर सकता। तो ये एक है। फिर नंबर मैराथन करके एक सब्जेक्ट है जिसमें रैंडम नंबर्स रहेंगे 3 8 5 6 वैसे ऐसे। फिर है नंबर शेप रिकॉग्नाइजेशन, जिसमें एक नंबर आएगा और उसके साथ शेप आएगा। ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है एक। तो नंबर और शेप भी मेमोराइज करना है हमें कि जैसे नेम्स और फेसेस थे वैसे। वैसे। तो ऐसे सब्जेक्ट्स है मेमोरी के। ब्रो, अभी 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 तो स्पीड रीडिंग भी हो रहा है कि कोई आपको पेज देंगे, उसको रीड करना है और वैसे के वैसे बताना है कि क्या क्या लिखा है। स्पीड रीडिंग। ओ गॉड, मतलब कितने तो वर्ड्स होंगे, लाइक ऑलमोस्ट एक पेज पे अगर पकड़े तो कम से कम। हाँ, वो एक पेज वैसे नहीं, अगर सारे मेमोरी एथलीट्स बैठेंगे, आप जितने कर सको उतने करने हैं आपको। ओके, एंड उसमें अच्छा बुक रीडिंग पे। हाँ, जो सबसे ज़्यादा करेगा, अगर मैंने 10 पेज किए, आपने 12 किए, सो यू आर द विनर, और आपने वो सही से रिकॉल किए, लाइक माय गॉड, मतलब न्यू न्यू डेवलपमेंट्स है हाँ तो वो चेंज होता रहता है। 100%। न्यूरो साइंस का जब इंक्लूडमेंट हुआ, जब पहले इतना लोग अवेयर नहीं थे, न्यूरो साइंस एंड टेक जब इतना नहीं था, तब भी ये सिमिलर फॉर्मेट्स थे या फिर थोड़े चेंजेस थे? थोड़ा लाइट था, थोड़ा इतना नहीं था? अभी अभी कैसे कर रहे हैं, क्विक फॉर्मेट्स ला रहे हैं कि 1 मिनट में लर्न करो, 1 मिनट वर्ल्ड रिकॉर्ड अटैम्प्ट, है ना। तब तो ज़्यादा पेपर फॉर्मेट पे था, डेक ऑफ कार्ड्स फॉर्मेट में था। तो अभी आप जैसे दुनिया फास्ट फॉरवर्ड हो रही है, तो वो क्विक क्विक सब्जेक्ट्स भी ला रहे हैं कि 1 मिनट में कौन सबसे फास्टेस्ट कर रहा है, वो सारे। सो दैट इज़ द थिंग। ओके, सो ये यही चेंज है, राइट? अगर किसी को एंटर करना है मेमोरी कंपटीशन में, वो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? खुद से। सो लाइक खुद से पहले तो प्रिपेयर करे खुद को, है ना। और फिर ही कैन ज्वाइन सम क्लासेस, जैसे पुणे में RSCI है। पहले तो आप ऑफलाइन के लिए जाने चाहिए, मेरे भी मेमोरी के बहुत सारे ट्रेनिंग्स हो रहे हैं। सो दैट ट्रेनिंग्स चिल्ड्रन कैन ज्वाइन एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू ओनली हेल्प देम टू जस्ट इम्प्रूव देयर मेमोरी, बट उनके एकेडमिक्स में भी उनको डेवलपमेंट दिखेगा और बहुत सारे चीज़ों में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है। सो 100% दे कैन स्टार्ट विथ बेसिक मेमोरी ट्रिगर्स लाइक पजल्स और ये सारी चीज़ें। सो बेसिक से स्टार्ट करना है। हाँ, बेसिक पजल्स वगैरह से स्टार्ट करो। खुद के लिए कुछ टास्क लो, कुछ तो लर्न करने का, है ना। उसको रिकॉल करने का ट्राई करो एंड फिर मेमोरी टेक्निक्स लर्न करो, है ना। जैसे कोई बिगिनर, लाइक कोई गाड़ी है चल रही है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए हमें थोड़ा सा उसको, है ना, नए गाड़ी को थोड़ा सा, हाँ, स्लोली स्लोली ऐसे बढ़ना है। या ओके, एंड ऑफलाइन इज बेटर, राइट, एज कम्पेयर टू ऑनलाइन? 100% ऑफलाइन इज़ बेटर, जिसमें अच्छे से गाइडेंस मिलेगा। एंड एट द सेम टाइम जिनको ऑफलाइन पॉसिबल नहीं रहता, दे कैन डू ऑनलाइन ऑल्सो। बट अगेन अगेन कोई भी अ, सीखने का जो पैटर्न रहता है ना, उसमें एक टीचर, जो सीखने वाला स्टूडेंट और पेरेंट, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ में भी ग्रो करने के लिए। तो ऑनलाइन भी अभी कैसे, जैसे बाहर के बच्चे
नहीं आ सकते ना पुणे में, तो ऑलरेडी लाइक आयरलैंड से कुछ बच्चे हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग मेमोरी गेम्स, है ना, तो वो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ओके, अगर आपके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है देन यू कैन गो विद द हाँ, ऑनलाइन, yes. बट अगर एक्सेस है तो यू शुड गो। should go for offline only, है ना, but the thing is that they should not miss it अगर it is available, and if you know people just keep on ignoring the things कि नहीं कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, but आपको बताओ कि फर्स्ट से लेकर 10th तक यही एक एज रहता है बच्चों में हमें इन्वेस्ट करने का, बच्चों को एक्टिविटीज़ लगाने का। 8th 9th के बाद आप ही देखो ना कितना उनको पढ़ाई का ये चीज़ें रहेंगे कितना, तो उनको ये एक्टिविटीज़ करने का समय नहीं मिलेगा। 11th 12th के बाद को तो पेरेंट्स, बच्चा पेरेंट का सुनेगा भी नहीं, वो खुद के खुद डिसीजन लेने लगता है, नहीं मैं सोचूंगा मैं क्या करना है क्या। बट ये जो एज रहता है ना, इसमें आप जितना एक्टिविटीज़, मतलब मेरा ये पेरेंट को कहना है कि वो जितना एक्टिविटीज़ लगाएंगे, कोई फिजिकल स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, क्योंकि यही एक एज है जिसमें वो खुद को डेवलप कर रहे हैं बच्चों को। बच्चा अलग अलग स्किल सीखेगा। आप लैंग्वेजेस के क्लास, आपको पता है लैंग्वेज भी मेमोरी को एक्सपांड करता है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ें सीखना रहता है, बहुत सारी चीज़ें स्टोर करना रहता है। तो ये सारे क्लासेस रखो, तो वही एक एज रहेगा जहाँ पे बच्चे डेवलप हो सकेंगे। और उसके बाद तो उसके रिजल्ट्स आपको 10th 11th 12th उसमें दिखेंगे, क्योंकि उनका डिसीजन मेकिंग उतना फास्ट रहेगा, है ना। और अगर इस एज में आप उनको अगर फ्री रख रहे हो, है ना, कोई भी ब्रेन अगर जब फ्री रहता है ना, माइंड, इन छोटे बच्चों का ब्रेन बहुत क्यूरियस रहता है, बहुत क्यूरियस, और बहुत लर्निंग के लिए ओपन रहता है। देखो बहुत छोटे छोटे बच्चे तो बोलते हैं ये ऐसे क्यों रहता है, ये ऐसे क्यों है, ये क्यों, कितने क्यूरियस रहते हैं। पर बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है अभी भी कि वो इग्नोर करते रहते हैं, नहीं नहीं ऐसे ही रहता है, आंसर नहीं करते। तो वैसे नहीं, उनको आंसर, उनकी क्यूरियोसिटी को कंप्लीट करो तो वो और सीखेगा और देखेगा। तो ये एक चीज़ है, तो यही एक एज रहेगा कि 1st स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड आप उनको जितना एक्टिविटीज़ कराओ, जितना सिखा पाओ उतना सिखाओ विथ देयर एजुकेशन। अभी तो ऐसे हुआ है कि जस्ट स्कूल किया तो बस, और है ना, ऐसे चीज़ें हुए हैं। जैसे आप पहले पुराने ज़माने में देख सकते कि कैसे पद्धत रहता था, लाइक गुरुकुल पद्धत वॉज देयर, है ना, और वो डेली स्कूल को जाते थे, लाइक शाम को ही सीधा आते थे पेरेंट्स के साथ, तो वो टीचर और स्टूडेंट ही रहता था, तो इसलिए वो इतने लाइक ग्रेट थे, है ना, सारी चीज़ों में। पॉइंट है, मतलब होना भी चाहिए वैसे। और आपने सही बोला कि बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, उस वक्त पे आप उनकी क्यूरियोसिटी को एक डेस्टिनेशन दे दोगे तो दैट वुड बी वेरी गुड, 100%। नहीं तो फिर आप उसे डिग मत करो। हाँ, आप उनको फ्री रख के लाइक वो क्यूरियोसिटी को क्लोज कर रहे हो। एग्जैक्टली। कौन सा मेमोरी इवेंट टफेस्ट है और क्यों? ऐसे तो नहीं कह सकते कि कौन सा मेमोरी इवेंट टफेस्ट है, जब हम जो चीज़ को हम प्रैक्टिस करेंगे लाइक उसको हम अचीव तो कर ही पाएंगे। बट टेक्निकल पीओवी से। जैसे कोई जर्मनी के चैम्पियनशिप्स होते हैं, अभी पेरिस में है ना, मेमोराइड के रहते हैं इवेंट्स, है ना, सो जिसमें लाइक पेपर और सॉफ्टवेयर में आगे, मुझे सॉफ्टवेयर ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं कहूँगा जब पेपर आएगा तो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है एज लाइक माई पॉइंट ऑफ व्यू। बट जैसे अलग अलग मेमोरी एथलीट्स है, तो कुछ लोगों को पेपर बहुत सिंपल लगता है, लाइक दे आर एबल टू डू लर्न द डेक ऑफ कार्ड वेरी क्विक। सो वैसे है, तो मेमोराइड के इवेंट्स जो रहता है, लाइक आई कांट से इट इज टफेस्ट, बट या वन ऑफ द टफेस्ट में कंसिडर कर सकते हैं उसे। ऐसा कोई एज बैरियर है कि सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं मेमोरी को लाइक डेवलप, या फिर हर कोई एज के कभी भी सीख सकता है? हर कोई एज के और कभी भी सीख सकता है। जब मैं गया था तो 45 ईयर्स के तो मेरे लाइक कॉम्पिटिटर्स थे, है ना, सो हर कोई एज के कर सकते हैं और आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी तो जैसे जो कॉर्पोरेट वर्कर्स है उनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो ये कुछ टेक्निक्स उनको इसमें भी हेल्प्स करेंगे, एक स्ट्रेस बस्टर भी हो जाएगा उनको, और एट द सेम टाइम चीज़ें याद रखने में हेल्प होगा। ऐसी कोई एक इजी ट्रिक है जो अभी आप बता सकते हो, तो जो भी हमें देख रहा है दे कैन ट्राई इट, एनी इजी ट्रिक। जैसे स्टोरी लिंकिंग मेथड हो, है ना, तो जैसे मर्क्यूरी मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून, है ना, सो इसको हम एक स्टोरी में, मतलब आपने सारे प्लैनेट्स। प्लैनेट्स बताया, हाँ, इसको बच्चों को अगर लर्न नहीं होते हैं, है ना, तो इसको हम एक स्टोरी में कर सकते हैं कन्वर्ट, है ना, सो मर्क्यूरी माई, वीनस वेरी, अर्थ, देन फ्रॉम ई यू हैव टू मेक अ वर्ड, है ना, तो ऐसे आप एक स्टोरी क्रिएट कर। स्टोरी क्रिएट करो और उसको रिकॉल करो, है ना। जैसे और एक स्टोरी हम अगर हम करेंगे, कोई मंकी है, एक एप्पल है, एक कार है, एक बुक है ना, तो व्हाट वी कैन से, अ मंकी फेल एन एप्पल ऑन अ कार वाइल रीडिंग अ बुक। अभी मंकी भी आया उसमें, दूसरे साइड टाइप में एप्पल आया वर्ड, फिर कार आया और फिर बुक आया,
मतलब मैंने स्टोरी क्या बनाई, अ मंकी फेल्ट एन एप्पल ऑन अ कार वाइल रीडिंग अ बुक। मतलब मैंने एक स्टोरी बनाई, ये 4 वर्ड मुझे याद रह गए सीक्वेंस में, मंकी, एप्पल, कार और बुक। ऐसे ऐसे जितने वर्ड्स करने हैं उतनी बड़ी मैं स्टोरी बनाऊंगा। ओके, सो आप एक-एक वर्ड पिक करके हम उसे रिमेंबर करके और रिकॉल करके हम उसे स्टोरी बना रहे हैं। हाँ, जैसे वो मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जैसे माई वेरी ईगरली मदर, है ना, ओके, सो स्टार्टिंग लेटर हम पकड़ के कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यूएशन करेंगे और जितने बन सकते उतने बनाएंगे एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। मतलब ऐसे ही जैसे अपने प्लैनेट्स का लिया वैसे लिस्ट ऑफ फ्रूट्स, लिस्ट ऑफ एनिमल्स, ऐसे ही करके स्टोरी पेयरिंग ना। हाँ, so ये इसका बेनिफिट कैसे रहता है फिर? आप ये रिकॉल करके मैं स्टोरी टेलिंग में अच्छे हो जाओगे आप शायद। हाँ, वो तो होएंगे होएंगे ही, है ना। और ये रिकॉल करने में बहुत सिंपल रहेगा। पर जैसे मैंने कहा कि सबसे अच्छा टेक्निक तो ये मेमोरी पैलेस वाला ही रहेगा, वो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस में हूँ, है ना। और ये प्लैनेट्स का भी अभी मैंने बना ही लिए, मतलब वो तो रेगुलर है ही। माई वेरी ईगरली मदर जस्ट सर्व्ड अस द नूडल्स। हाँ, ये सुना है मैंने। हाँ, तो ये रेडी है। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे टेक्निक्स, मतलब बना के। मल्टीटास्किंग हमारे ब्रेन को कितना क्लटर करती है और ये लॉन्ग रन में कितना अफेक्ट कर सकती है? मल्टीटास्किंग होता ही नहीं है। आप ब्रेन को मैं भी एग्री करती हूँ। ब्रेन को बस बोलते हो कि मैं मल्टीटास्किंग करता हूँ, बट मल्टीटास्किंग होता ही नहीं है। अगर आप खाना खाते वक्त टीवी भी देख रहे हो ना, तभी भी आप ऑब्जर्व करो, ऐसे बच्चा रुकता है, टीवी देखता है, फिर खाता है, और जब वो खाता है तब वो फिर खाता ही है ना। तो मल्टीटास्किंग नहीं होता, ब्रेन एक वक्त एक ही चीज़ कर सकता है, दैट इज़ द थिंग। तो मल्टीटास्किंग नहीं होता। ऐसे लोग बोलते हैं कि आई एम मल्टीटास्किंग, कभी कभी नहीं क्या। नहीं करते हैं, बहुत लोग करते हैं। एक जगह लैपटॉप, एक जगह वो रीडिंग कर रहे हैं, एक जगह 10 चीज़ें साथ में। कितना लोड आता है ब्रेन पे। हाँ, तो वो नहीं, अगर हम उसको और डीप में जाके देखेंगे ना, हाँ, उनके लिए वो मल्टीटास्किंग है कि बट एक्चुअल में नहीं है क्योंकि वो काम हुआ ही नहीं। हाँ, काम तो हुआ ही नहीं। और जो कल कर भी रहे हैं, तो जब वो लैपटॉप पे फोकस करे तो एट दैट पॉइंट वही एक सेकंड के लिए वो बस लैपटॉप पे ही कर रहे हैं, और जब बुक पे आ रहे तो बुक पे ही आ रहे, तो मल्टीटास्किंग कैसे हुआ? वो उस लाइक एक आवर के लिए वो पकड़ रहे कि मैंने 1 घंटे में ये 2 चीज़ें कर लिए। पर उसको अगर हम एकदम शॉर्ट में देखेंगे ना, मतलब आप समझ रहे हो कि जो वो लैपटॉप की तरफ देख रहा है तो वो लैपटॉप का ही चीज़ कर सकता है, उस लैपटॉप को देख के वो बुक पढ़ सकता है क्या? नहीं पढ़ सकता। सो उनके एक माइंड को ना कमांड दे दिया कि मैंने 1 घंटे में, जैसे आपने बोला, इतनी चीज़ें कर ली है, बट एक्चुअली हुई नहीं है। एक्चुअली वो इंडिविजुअल चीज़ ही हुई है। तो वो इंडिविजुअल चीज़ों में फोकस कर करके एक एक को कंप्लीट जब करेंगे तो वो अच्छी तरीके से होगा। आई एग्री। मल्टीटास्किंग वाले लोग बहुत भरे पड़े, मैं भी थी उसमें से, बट देन आई गेव अप क्योंकि फिर माइंड पे बहुत ज़्यादा लोड आने लगता है एंड इवेंचुअली आप फिर बर्स्ट आउट हो जाते हो, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एंगर, इन द फॉर्म ऑफ क्राइंग और इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, कि हो जाता है कि अब मुझसे नहीं होगा। सो आई गेस मल्टीटास्किंग तो लॉन्ग रन के लिए तो आप खुद को, जैसे आपने बोला, बोल सकते हो कि आप कर रहे हो, पर वो होता नहीं है, ये भी पॉइंट है। India recently produced World Memory Championship, Vishwa Raja Kumar. What does his achievement mean for memory sport in India? See, like what Vishwa Raja Kumar achieved, like I don't know him very really personally, but like अभी वो नरेंद्र मोदी जी से भी मिले लास्ट इवेंट में। सो लाइक इट वाज अ वेरी गुड अचीवमेंट कि मेमोरी स्पोर्ट्स में हमारे लाइक इंडिया से एक बच्चा अचीव कर रहा है, दैट टू लाइक ही इज़ 3x वर्ल्ड चैम्पियन नाउ। ओके, सो दैट इज़ वन गुड अचीवमेंट। तो वही उसको इंस्पायर होके और लोग सीखेंगे, दैट इज़ द थिंग, ग्रो होगा, राइट? ग्रो होगा। और कितने बच्चे मतलब अपने एक आइकॉन रेडी कर देते, जैसे वैभव सूर्यवंशी को देख के नाउ एवरी किड इज चीयरिंग फॉर हिम, कि उनको भी कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनको भी बनना है क्रिकेटर्स जस्ट बाय लुकिंग वैभव सूर्यवंशी। सो आई गेस वैसा इम्पैक्ट भी बढ़ता है। ये और विश्वा राजकुमार का जैसे मैंने लाइक उनका सुना था, तो मैंने उनको मैसेज भी किया था इंस्टाग्राम पे भी रिसेंटली, जैसे मैंने उनका उनका सुना और सब कुछ कि हाय आई जस्ट वुड लाइक टू क्योंकि सीखने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैंने उनसे भी पूछा कि व्हेन कैन आई गेट गाइडेंस फ्रॉम यू, मुझे आप हम करेंगे आपसे बात, है ना। तो लाइक उनके जो टीचर है, लाइक दुबई में एक चैम्पियनशिप था, तो वो विश्वा राजकुमार जी और जो हमारे नितिन सर है नासिक से, तो वो सब वही चैम्पियनशिप में थे 2024 दुबई के इवेंट में। तब उनको मिले थे, तो उन्होंने बोला कि लाइक हम मेरा भी एक स्टूडेंट है राज करके, तो तुम उनसे मिलो। तो वैसे मैंने उनको अभी लाइक रिसेंटली मैसेज भी किया था कि बट राइट नाउ ही इज़ डूइंग इंजीनियरिंग, और वो बोले कि लाइक अभी तो बिजी है। बट वही एक देखो ना, मतलब वो इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो फील्ड में, सो दैट इज़ वन लाइक गुड अचीवमेंट।
Good achievement, right? And it's very proud to even know about that. या उनके बारे में देखो तो लाइक बहुत सारे कंट्रीज में जाके उन्होंने खेला है, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट. So now we have a rapid fire round. Okay, so you just need to answer that in one sentence or one statement. ओके. One habit you never compromised on. माय प्रैक्टिस. Every day या you do? या Really? या Okay. A book that changed your thinking. भगवद गीता. Hmm. I am still on reading. One productivity hack everyone should try. वन Productivity hack everyone should try. मेडिटेशन. It works. 100%. That requires focus. If you could master any one skill right now or instantly, what could be that skill? रिपीट अगेन प्लीज. If you could master any one skill, अगर आप कोई भी अभी नई स्किल मास्टर कर सकते हो इस वक्त, so वो स्किल कौन सी होगी जो आप करना चाहोगे? कोई भी स्किल सीखने को एक्चुअली समय लगता है, सो शांत बैठना ही. मेडिटेशन अगेन. Again, meditation. Okay, fine. Define success in your terms. एक शब्द में Yeah, anything. बेसिकली आई फील व्हेन वी विल बी सक्सेसफुल, लाइक मेरे केस में तो जब मैं ये काबिल बनूंगा कि आई कैन हेल्प अदर पीपल इन दिस फील्ड, सारी चीज़ें मेरे सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के, एट दैट टाइम आई विल फील सक्सेसफुल. सो सक्सेसफुल होना इज़ नॉट लाइक समथिंग कि सम अचीव सम फाइनेंशियल गोल्स और समथिंग लाइक दैट. जस्ट आई फील दैट आई शुड बी एबल टू डू सम लाइक सेवा और सोशल वर्क लाइक दैट. Okay. Do you think studying for 10 hours can help you with the better learning and understanding? नो, And the reason? you can't focus for 10 hours continuously, and like again, like I'll point out those who study like NEET exams, JEE and CA, they all are studying and for 8 hours 10 hours. But if you think practically, like 8-10 घंटे आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, उनके लिए क्या हम एक टास्क देंगे, आप 8-10 घंटे कुछ पढ़ो, ठीक है, मतलब कोई आपका जो भी टॉपिक है, और दूसरे दिन मुझे बताओ कि मैंने ये टॉपिक्स किए थे. वो सिर्फ 30% या मैक्सिमम 50% ही रिकॉल कर पाएंगे. अगर कोई 80% कर रहा है, सो फ्रॉम देम हमारे तरफ से हम उनको कोई तो स्पॉन्सरशिप गिफ्ट करेंगे, है ना. बट ये नहीं होगा क्योंकि 10 घंटा पढ़ाई करके आप वो नहीं रिकॉल कर सकते, है ना. पढ़ने की एक ट्रिक बताऊंगा मैं, ये बहुत लोगों को हेल्प होगी. आप एक तो 10 घंटा पढ़ रहे हो ना, तो उसको ब्रेक करो. मतलब 40 मिनट्स को पढ़ो, 20 मिनट्स मस्ती मजाक करो, क्यूबिंग करो या कुछ जो भी आपके हॉबी है वो करो, है ना. फिर 40 मिनट्स पढ़ो, फिर ब्रेक लो. ऐसे पढ़ के आपको रिकॉल होगा. या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप 30 मिनट्स पढ़ रहे हो, एक 5 मिनट्स ब्रेक ले रहे हो, 10 मिनट्स आप रिकॉल राउंड ले रहे हो, और फिर ब्रेक, फिर नेक्स्ट. ऐसे सेट्स में पढ़ो, सेट्स में एक पैटर्न में पढ़ो, है ना. जैसे एक पैटर्न हो गया, ऐसे दिन के 4 पैटर्न फिक्स करो, और चारों पैटर्न का लास्ट में एक रिवीजन होगा. Okay, got तो it. ये ज़्यादा जल्दी वो मेमोराइज कर पाएंगे चीज़ें, ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे. इसमें भी वो 60-70% ही ग्रास्प कर सकते हैं. एक सबसे बेस्ट चीज़ क्या है पता है मेमोराइज करने का? जब टीचर भी हमें सिखाते हैं ना, तभी हम भी लाइक 60-70% ही ग्रास्प कर सकते हैं. 100%, 80-90% नहीं कर सकते, क्योंकि उतने लेवल से हम एनकोड नहीं ना कर रहे उसको मेमोराइज उस लेवल से नहीं कर रहे. तो पढ़ने का एक अच्छा तरीका, और अच्छे से आपको अगर करना है तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो. आपको जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, उसको पहले तो पढ़ो, खुद पढ़ो, और ऐसे हिसाब से पढ़ो कि आपको किसी को तो सिखाना है, ठीक है. अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश का कोई लेसन पढ़ रहे हैं, तो उसको हम जब पढ़ रहे हैं तो मैं ऐसे मोटिव से पढ़ूंगा कि मुझे ये आगे जाके किसको तो सिखाना है. तो आपका माइंड इससे लेगा, वो उसको ग्रास्प करेगा, बहुत परफेक्टली ग्रास्प करेगा, क्योंकि किसी को तो आपको बताना है, किसी को तो आपको रिप्रेजेंट करना है. Right. और जब आप सिखाओगे ना, मैं आपको कहूँगा कि आप 90% आपने वो नॉलेज खुद में आपने रिवाइज कर लिया है, Oh. है ना. जब आप किसी को सिखाते हो तो पढ़ने के बाद ऑलवेज, अभी आप अपने छोटे भाई बहन हो उसको सिखाओ, कोई नहीं है पेरेंट्स को सिखाओ, बट आप सिखाओगे तो 2 फायदे हो रहे हैं. एक तो वो सामने वाला भी सीख रहा है, उसको भी नॉलेज मिल रहा है, और आप खुद में रिविजन कर रहे हो. Right. तो जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, दे शुड इम्प्लीमेंट दिस थिंग, है ना, जिससे नॉलेज भी स्प्रेड हो रहा है, एट द सेम टाइम उनके खुद में भी कितना रिविजन हो रहा है, देखिए ना आप. सो ये उनको हेल्प करेगा. और मैं ये कह सकता हूँ कि जब ये दूसरे दिन भी बता पाएंगे आपको कि नहीं ये टॉपिक है, ऐसे मैंने होता ये सिखाया 100%. तो ये
इस हिसाब से पढ़ाई करना चाहिए। 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे उसमें से 2 घंटे ही प्रोडक्टिव रहेंगे, बाकी सब वेस्ट रहेगा। जैसे मैंने कहा ना ना कि कि आप फन कर रहे हो ना आप अच्छे से सीख रहे हो। हाँ, एक तो टेंशन में कर रहे जो कर रहे हो, है ना? तो वो ये चीज़ है। पूरे पीसफुल माइंड से करो, प्लीजेंट माइंड से करो, हैप्पीली उसको लर्न करो, तो ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट के साथ ज़्यादा अच्छे से ग्रास्प होता है। 10 घंटा का टारगेट रख के पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होएगा चीज़, बट हो सकते हैं कोई 1-2 लोग जो 10 घंटे में कर रहे हैं ऐसे। Maybe. How can memory tricks and techniques help in competitive exams like UPSC, JEE, NEET, and many more? Like this only, as I told Say. कि यूजिंग दिस टेक्निक्स, ओके, जैसे टाइम वाले मैंने बोला, एक पैटर्न बनाओ पढ़ाई के लिए, ठीक है, एक टाइम शेड्यूल बनाओ, Okay. उसको फॉलो करो बहुत डेडिकेटेडली, और जब पढ़ते हो ये शेड्यूल में तो उसमें हमें मेमोरी टेक्निक्स यूज़ करनी है ना? जैसे नीट के 4-5 लेसन्स हो, 4-5 टॉपिक्स हो, तो एक टॉपिक के लिए हम एक माइंड मैप बना सकते हैं। तो वो माइंड मैप किस लिए कि एग्जाम के पहले दिन हमने एक बड़ा माइंड मैप बनाया है। माइंड मैप में सब रहेगा कि ये लेसन में क्या क्या चीज़ें हैं और उसके बोल्ड पॉइंट्स, उसके ब्रांचेस। तो माइंड मैप आप वो जो अगर लगाओगे ना अपने घर पे, तो एग्जाम से पहले आप जब माइंड मैप को देखोगे ना तभी आपको याद आएगा कि हाँ इसमें ये चीज़ें हैं, आई कैन रिकॉल इट। तो एक माइंड मैपिंग टेक्निक आप स्टडीज़ के लिए यूज़ करो, तो 100% मेमोरी टेक्निक्स कैन हेल्प टू अचीव इट। Okay. Okay. Any food and lifestyle habits that one needs to include? एनी Food and lifestyle habits that one needs to include to make their memory better? या फूड, ब्रोकली, देन डार्क चॉकलेट, Dark chocolate. या जो हमारे दाल्स वगैरह रहते हैं वो भी सारे, है ना? स्पिनच, दैट इज़ वन गुड सोर्स। सो जिसमें विटामिन्स वगैरह है वो भी। तो ब्रोकली, मेरा जब मेमोरी का ये चल रहा था ट्रेनिंग, तब तो मेरे को घर वाले डेली डार्क चॉकलेट का उन्होंने बताया था, तो डार्क चॉकलेट डेली देते थे। तो सबसे पहले तो 30% वो कड़वा लगता था उस वक्त, क्यों खाना है, तो 30% डार्क चॉकलेट हमने स्टार्ट किया था, फिर स्लोली स्लोली 70% डार्क चॉकलेट तक लेते थे। तो डार्क चॉकलेट, है ना? ज़्यादा पानी पियो, हाइड्रेटेड रखो खुद को, एंड लाइक फ्रेश फूड ज़्यादा लाइक लो, है ना? ऐसे बाहर का भी कम खाओ। जैसे कैसे फूड में जैसे ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा मसालेदार भी हो ना, पता है वो भी हमारे माइंड को ये होता है। हम करता है। हाँ, क्योंकि ज़्यादा तीखा अगर हम खा रहे हैं तो वो थोड़ा सा इनडायरेक्टली हमारे इमोशंस को भी कनेक्ट होता है। सो वो एक चीज़ है, तो ऐसे। There are some habits जिसको आपको रेट करना है ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10. There are going to be some habits, उसमें से आपको गेस करना है कि रेट करना है कि कौन सी ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छी है। ठीक है, सो फर्स्ट इज स्लीपिंग फॉर 8 hours. रेटिंग इज 9 एंड डिपेंडेड ऑन द एज ओनली, सो 9, या Okay. Playing online games. 4। 4. Okay. मुझे लगा नेगेटिव में जाएगा वो। Doom scrolling. 2। Reading and writing. 9। Playing chess. 9। Talking to someone. 9। 9. Multitasking. 0। Meditation. 10। Yes. Kids. या Now we are done with the questions and answers. Okay, so now we are going to call 2 smart kids जिनको बहुत अच्छे से टेक्निक्स आती है। अब मैं बताऊंगी नहीं कौन सी टेक्निक्स आती है, मैं उनको जस्ट बुलाऊंगी। सो प्लीज वेलकम रियांश एंड श्रीपाद। यस सर, सो आपको बताना है अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किस चीज़ का है। तो अभी हम देखेंगे कि लाइक बहुत पेरेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि रूबिक्स क्यूब के थ्रू हम फोकस कैसे बढ़ाते हैं या ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैसे हेल्प करता है। तो आज हम इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले तो हम इनको सॉल्व करने को बोलेंगे, ठीक है? और ये सॉल्व करेंगे, बट हमको इनको करना है डिस्टर्ब। ओके, नाउ दैट्स द पार्ट। तो अभी हम देखेंगे कि कितने फोकस के साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने अभी सारे क्यूब्स तो स्क्रैम्बल किए और थोड़ा पहले कर लेते हैं, है ना? तो फिर ये सॉल्व करेंगे। ओके, मैं भी थोड़ा करती हूँ, मैं अरेंज करके ना दे दूँ। और 2 बाई 2 तो ऐसे अरेंज हो ही हो जाएगा। ही जाएगा वो। चुटू है ये, तो ये है, हो गया। चला, चलो, सो आई विल टेल यू ओके व्हेन टू स्टार्ट। कैसे करना है, दोनों को साथ में स्टार्ट करना है। हाँ दोनों को साथ में करना है, बट हमें इनको डिस्टर्ब करना है अभी। ओके, मेरा फेवरेट पार्ट। ठीक है, चलो आप उनको डिस्टर्ब करोगे, मैं इसको डिस्टर्ब हाँ। करती हूँ। स्टार्ट।
सुनना, पाव भाजी खाने का मन हो रहा है ना तेरा? मुझे पता है तुझे भूख लग रही है। बोल पिज्जा कौन सा खाना है, पिज्जा या पाव भाजी? सुनना श्रीपाद अब अभी अभी उसका ऑर्डर आया है, तेरे को नहीं खाना, गलत किया तुझे तूने, सच्ची गलत नहीं किया। खाना। अगर तू नहीं रॉन्ग पीस बोलेगा है, तो चला जाएगा। रॉन्ग पीस है श्रीपाद, कैसे wrong है। चलेगा? मिस कर लेगा तू, सच्ची बोल रही You're हूँ, doing बहुत it टेस्टी wrong. है वहाँ का। हाँ भूख लग रही है तुझे, मुझे पता कान है। पकड़ो क्या? जल्दी बोल। Done. Okay. ब्रेक अंडर अंडर 30 सेकेंड्स, डैम। हमारा श्रीपाद कर रहा है। श्रीपाद, यस यू कैन डू इट। यस 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 यस। Okay. सर आपने बहुत डिस्टर्ब किया बच्चे को, दिस इज रॉन्ग। मैंने तुझे पाव भाजी की बात बोली तो डिस्टर्ब कैसे नहीं हुआ? अरे मुझे भूख लग गई थी। Okay. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 2x2. 2x2, या Yeah. अभी हम इसमें क्या करेंगे? वी विल जस्ट ट्विस्ट द पीसेस। अभी हम प्रॉब्लम Okay. सॉल्विंग के लिए देखेंगे, तो हम इसमें से पीस ट्विस्ट करेंगे। तो और हम इनको बिना बताए ट्विस्ट करेंगे पीस, पर इनको ढूंढना है कि हमने कौन सा पीस ट्विस्ट किया था। ओके। तो इसमें हम प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे एंड देन दे हैव टू फाइंड द पीस। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा फोकस का डेमोन्स्ट्रेशन, हम उनको डिस्टर्ब कर रहे थे बट दे वर कंटिन्यूअसली फोकसिंग। तो यही है कि फोकस ऐसे बढ़ता है कि जैसे ये फोकस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो चीज़ हम प्रैक्टिस करते हैं वो बढ़ती है, लाइक वो इम्प्रूव होती है। तो वैसे ही रूबिक्स क्यूब जब आप हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ प्रैक्टिस करते हो तो फोकस बढ़ेगा। अभी हम इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम ऐसे कोई भी पीस ट्विस्ट करेंगे, ये इनको नहीं बताएंगे। आप दोनों आँख बंद करो या तो ऊपर देखो। या फिर हम नीचे से कर सकते हैं। हाँ, हम तो That's- हाँ? ये गाना है ना। क्यों नहीं होता ट्विस्ट? नहीं होता? अच्छा मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा ये 2 पीस तो मैंने ट्विस्ट किए इधर, आपको आप और बिगाड़ दीजिए। अभी मैंने कौन से किए वी आल्सो डोंट नो। ओके ओके ठीक है, जस्ट ट्विस्ट इट। ओके इट इज ट्विस्टेड। ओह वेट, चलो डन। दिस इज ब्रेक वन मैनो। ओके डन। ओके जो भी पीस गलत रहेगा यू नीड टू फाइंड इट आउट। ठीक है, सर तो फिर हमें वो वापस ट्विस्ट करना है, आपको बोलना है। आपको बोलना है कि मैंने प्रॉब्लम ढूंढ लिया, और फिर जो पीस गलत है वो आपको दिखाना है कि दिस इज द प्रॉब्लम एंड आई विल सॉल्व इट। ठीक है, तो अभी दोनों पीसेस क्यूब में तो पीस ट्विस्टेड है। ठीक है, सो हम टाइमर को रीसेट करेंगे, यस और ये प्रॉब्लम आपको 1 मिनट के पहले ही ढूंढना है अभी। ठीक है, मिनट के यस। रेडी? सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। क्यूब ऊपर रखो। स्टार्ट। स्टार्ट हो गया। टिक 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 टिक। ट्विस्ट ओके इसने प्रॉब्लम ढूंढ भी लिया है, पीस ट्विस्ट है। ओके इसको सही करते हैं हम। सर ट्विस्ट है। ओके उसको सही Wow! करो, सही करो। दोनों बच्चों ने 15 सेकंड के अंदर ढूंढा है। ओके ये इसका सॉल्व हुआ है। कितने? बूम। सॉल्व। ओके 30 सेकंड्स के प्रॉब्लम अंदर। क्या था वो तो मुझे बताओ। अभी इसमें जो पीस इन्होंने ट्विस्ट किए थे हाँ। वो उन्होंने ढूंढ के निकाले एंड दे Right. सॉल्व द प्रॉब्लम। तो वैसे हम नॉर्मली इसमें प्रॉब्लम नहीं ढूंढ सकते कि कौन सा पीस ट्विस्ट था, Right. राइट? क्योंकि हमें भी पता नहीं था। बट वाइल द सॉल्विंग दे फाइंड इट आउट कि यही प्रॉब्लम, ये पीस में प्रॉब्लम है, ओके एंड आफ्टर दे ट्विस्टेड इट, इट गॉट सॉल्व्ड। सो दिस इज हाउ इट हेल्प्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। वाओ कूल ब्रो कूल। कैसे कैसे कर लेते हो इतना सारा पढ़ाई के साथ साथ ये सब? 30 सेकंड्स के अंदर किया आई थिंक। 20 सेकंड्स के अंदर, 30 सेकंड्स में आप 1 मिनट बोल रहे थे, 20 सेकंड्स के अंदर किया है। कूल गाइस कूल। सो लेट्स मूव विद द नेक्स्ट एक्टिविटी। अभी Yeah. कौन सा हम कर रहे हैं? अभी है ट्रायंगुलर पिरामिड्स क्यूब। सो इसको हम इन्हें टारगेट देंगे कि दे हैव टू सॉल्व इट अंडर 30 सेकंड्स। अभी तो 1 मिनट का था तो प्रेशर नहीं दिखा दे नकली का। चलो आर यू रेडी? यस सर। मैं स्टार्ट करूं? हाँ आप 0 दिखाइए, विल स्टार्ट। 1 सेकंड। ओके 3 2 1 स्टार्ट। माय गॉड कैसे कर रहे हैं हाथ। Oh my- ओ 12 भाई। इट्स 14 सेकंड्स और उससे भी पहले हुआ था टेक्निकली। नाउ वी आर डन। ओ दोनों बच्चे ने 21 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व किया है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगा? 3x3 3x3। एक भी नहीं। ओके यू आर दैट किड ना, मुझे कुछ डिफिकल्ट नहीं लगता है। नहीं, मेरे लिए क्या है, सब इजी है। हाँ पर ये बहुत साल से प्रैक्टिस हो रही है ना। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यू आर Okay. किड।
Okay, so now the next one is this one, right? Yeah, this is the mirror one. Okay. So now Shripad, right Shripad? Yeah, Now Shripad is going to do the mirror puzzle. blindfolded. My God. Let's guess if he can do. मुझे पता है वो कर लेगा. ये इतने सारे कर लिए. तो आप ही स्क्रैम्बल करिए उसको. अरे सर, इतना इतना अनइवन है ये आप ही करिए. आप बेटर करेंगे. मैं उसके अंदर ही वो हो जाऊंगी. माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है देखने में. तो इसको हमने स्क्रैम्बल किया, इसको blindfolded. I think यू हैव? yeah. No, I don't have. I think this will work. I think. Yeah. या आएगा क्या उसको? हाँ, हम वैसे करेंगे, ठीक है. So Shripad, are you ready? यस. विल टेस्ट हुआ श्रीपाद. तू देख रहा है क्या नहीं नीचे से? You have to close your eyes. Okay, you want to observe it first? So Shripad को इसको observe करने दीजिए and Sure. we'll put a blindfold on them. Observed? Okay, ready? माय गॉड. तो यांश आप हेल्प करो. करिए रहा है पर मुझे हो रहा है. उल्टा उल्टा. वेट. Is it okay? नो नो, उसका वो मुंह बंद हो जाएगा. वेट वेट. है हवा है. एक सेकेंड. ऐसे कर लीजिए. हाँ. ऊपर. जस्ट वो नोज का ओपन रखिए. ओके श्रीपाद. ब्रीथ कर पा रहा है ना? हाँ, टाइट है. टाइट नहीं. ये कितना है? अच्छा सुन ना, तेरे पास कौन बैठा है? ए पता है ना तुझे? दो लोग बैठे. इस साइड बैठा है. चलो अच्छा, रेडी ready? है तू श्रीपाद? Do mirror क्यों? रेडी श्रीपाद? ओके, वी आर स्टार्टिंग. अच्छा चलो, we'll start. Okay, okay. So we are actually getting started. Okay. Start. My God. I was observing the pieces. Yes. डिस्टर्ब करने का भी मन नहीं हो रहा है यार. Let him do. This needs actually a lot of focus. हर एक Yeah. piece को उसको like सारे अनइवन है. ये हाँ, करना मुझे. feel करना है. That is the thing. How smartly he's doing. Disturb करना है. करे? नहीं, ये बहुत कंसंट्रेटेड है. ये नहीं होगा डिस्टर्ब. वो फील कर रहा है सब. श्रीपाद also ये बहुत सालों से practice कर रहा है ऐसे. श्रीपाद, तेरा दोस्त गया. सब जा रहे हैं. तू अकेला बैठा है. अभी लाइट भी बंद हो जाएगी. Relaxed and calmed. I think उसने पहला लेयर कर रहा है. Oh, he has done with the first layer, you can see. What do you think, guys? Will he able to do? Everyone is silence in the room.
अभी तो डिस्टर्ब करना चाहिए शायद। अब तो करना चाहिए, अब बनता है। हम जा रहे हैं। तेरे को कल भी आना है सर के साथ यहाँ पे, पता है तुझे? और कल 4 घंटे बैठना है यहाँ पे। कौन सी क्लास में पढ़ता है तू? 7th. 7th? अरे वाह, फेवरेट कलर कौन सा है? रेड। फेवरेट मूवी? This is something. Oh, it is almost done. My God! नहीं हो रहा यार इसको डिस्टर्ब करने का मन। Done. What? भाई तूने सच्ची कर दिया ब्लाइंड फोल्डेड? It is solid. Guys, अंडर 5 मिनट्स। श्रीपाद खोल दे आग भाई, खोल दे। Yeah, help her. क्रेजी भाई, क्रेजी कर दिया तूने, देख। ये तो रोज करता है क्या घर पे ऐसे ब्लाइंड फोल्डेड? माय गॉड, 5 मिनट के अंदर अंदर किया है तूने, वो भी 5 मिनट जस्ट लगा था। Yeah. नाइस नाइस। डर लगा? पानी चाहिए? गाइस सी, क्या कितना फर्क पड़ता है जब हम मेमोरी टेक्निक्स पे काम करते हैं और हमारा ब्रेन कितना फोकस रहता है। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस एक्टिविटी द वे वी हैव एंजॉयड विथ बोथ ऑफ द किड्स। एनीथिंग यू वांट टू से टू द किड्स, जो तुम्हारे एज के है, तुम्हारे ब्रोस? कुछ भी बोलना है बोलो बिंदास। अरे बोलो। Love, cubing is a really fun activity. Don't take it as a punishment. First, I also felt that what is this? This is equal to like studies. We have to memorize the formulas, but it's a really cool game, man. इट्स अ कूल गेम ब्रो। श्रीपाद, अरे बोल दे कुछ नहीं, तू इतना सीधा क्यों श्रीपाद? अच्छा 2 वर्ड बोल दे श्रीपाद, सुनना है हमें। क्यूबिक कैसा लगता है? कैसा लगता है? अच्छा अच्छा लगता है? लगता है। ओके। आगे भी करेगा तू? ओके। Thank you so much for coming here and joining this conversation on about memory athlete and the concentration and cognitive abilities. It is really a good pleasure to have you with us and the kids that you have trained. We have all now saw that how important it is to practice the memory power and how to build that. Thank you so much for joining here. Thank you so much.